हिमांशु भी आ गए हैं। स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल। हेलो हेलो ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक केडिया है। आज जयपुर चार्टर्ड यूथ क्लब की तरफ से हमने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है ऑन टीडीएस एंड रिसेंट अमेंडमेंट्स। तो हमारे आज के स्पीकर सीए रोहित शर्मा जी हैं, बहुत ही अच्छे स्पीकर हैं, टीडीएस के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए मैं आप लोगों से रोहित शर्मा जी को बोलूंगा, कृपया अपने जो भी टीडीएस के ऊपर जो उनको बोलना है अपने सेमिनार चालू करें। थैंक यू। ओवर टू रोहित शर्मा जी। हाँ जी, हेलो हेलो। मोनू जी म्यूट करें तो एक बार सबको आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कर देता हूँ। प्लीज म्यूट ऑल एंड अनम्यूट ओनली मिस्टर रोहित शर्मा। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो दोस्तों, माय नेम इज सी रोहित शर्मा। आई एम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट इन जयपुर और टॉपिक है टीडीएस लॉज एंड रिसेंट अमेंडमेंट्स इन टीडीएस। तो टाइम बहुत कम है और टाइम को देखते हुए हम शुरू करते हैं। और ये टीडीएस के बारे में आप शुरू करते हैं। हम क्या है टीडीएस? TDS is deducted at source as a mean of collecting income tax in India. Under the Income Tax 1961, any payment covered under these provisions shall be paid after deducting a prescribed percentage or rate. The government uses TDS as a mechanism to by taxing the income partially or wholly at the time it is generated rather than lower rate. कौन-कौन है जिसको TDS डिडक्ट करना है? All firms, companies, trusts, societies, irrespective of turnover on all types of expenses. और इंडिविजुअल और HUF को सैलरी पे हर केस में और अदर एक्सपेंडिचर के केस में ओनली तभी करेंगे जब वो उनकी टैक्स ऑडिट होगी इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। TDS कब डिडक्ट करना है? जब पेमेंट करे सैलरी का उसी टाइम TDS डिडक्ट करना है। और TDS डिडक्ट कौन करेगा? एम्प्लॉयर जो उसको सैलरी पे कर रहा है और रेम्यूनरेशन या और भी सैलरी के रूप में और भी जो पेमेंट कर रहा है उसको TDS डिडक्ट करना है। ये सब चालान आपको पता ही होगा, 281 चालान में जमा होगा। और फॉर्म 16 अगर नहीं इशू करते तो 200 रुपये पर डे पेनल्टी है। तो आपको फॉर्म 16 इशू करना है टाइम पे 16। अब है TDS on interest and securities, section 193. Section 193 provides that where any person pays any income by way of interest and securities to pay, the tax will have to be deducted at source. Payments to non-resident will be subjected to TDS 195. Non-residents को जो payment होगा वो 195 में अलग cover है. What payments are covered by section 193? Payments which fulfill following conditions are subject to section 193. Payments in the nature of interest and securities, and such interest and securities not exempt to tax by virtue of section 193. Interest and securities क्या है? Interest and securities in reference to written instrument, and such instruments are usually for the payment of money or to evidence a debt. They are more than a mere promise of debtor to pay liability and have a collateral to such instruments, pledges of property or some additional obligation. अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं तो आप बता सकते हो, ठीक है? एग्जम्प्ट सिक्योरिटीज। ओके सर, ओके। कुछ सिक्योरिटीज एग्जम्प्टेड है 193 के अंदर, वो ये है एनी इंटरेस्ट पेबल ऑन 5-year नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनी इंटरेस्ट पेबल टू अ रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट HUF, and any debenture issued by a company in which public are substantially interested, if the following conditions are satisfied. The amount of interest, or as the case may be, aggregate amount of such interest paid or likely to be paid on such debenture by a company to. अब ये कुछ और पॉइंट्स है। The expression owner of securities in
Section 199 would include a beneficial owner name, but in the name of collecting bank is entitled to apply for grant of an abatement or exemption under section 197A. अगर कोई लोअर टैक्स डिडक्शन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो 197A के अंदर 197 के अंदर वो अप्लाई कर सकता है डिपार्टमेंट को. Where government securities are registered in the name of banking company, tax will be deducted source from the interest at the rate in force applicable to the banking company without regard to the status of the beneficial owner of securities. The tax deduction certification under section 203 will also be furnished to the banking company. अब ये थोड़ा बहुत ज्यादा अपने काम का है नहीं. ये कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन पर्सन्स जिसका टैक्स डिडक्ट नहीं करना है. नो टैक्स डिडक्शन फॉर द फॉलोइंग पर्सन्स: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आरबीआई, यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी एंड इट्स सब्सटेंशियल इट्स सब्सिडरीज एंड अदर इंश्योरर. कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल एक्ट whose income is exempt under from tax, mutual funds as specified under section 1023D. When tax is deducted, ये सबको पता है, टीडीएस में पेमेंट और अक्रू व्हिचएवर इज अर्ली उस पे टैक्स डिडक्ट किया जाता है. When no tax need to be deducted or tax may be deducted at a lower rate, तो पेयर को एक एप्लीकेशन देना पड़ता है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में असेसिंग ऑफिसर को, और वो असेसिंग ऑफिसर अगर सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो उसका टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा. बट दो सर्टिफिकेट में और जो भी फॉर्म है उसमें उसको पैन नंबर कोड करना इंपॉर्टेंट है, वो कोड करना ही पड़ेगा. ये सब आप जानते हैं, ये 26Q फॉर्म में रिटर्न जाती है इसकी. अब है अपना नया सेक्शन 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. Under section 194A, any of the specified person is liable to deduct tax at source if such person makes payment of income by way of interest other than securities to any person. The payer or deductor shall deduct TDS if the amount of such interest paid or credited or is likely to paid or credited in a financial year exceed 40,000 in case of banking company or post office. अगर payer अगर banking company, post office या banking institution है तो उसको 40,000 के ऊपर TDS deduct करना है 194A में, और अदर्स के केस में 5,000 इन केस ऑफ इंटरेस्ट अनसिक्योर्ड लोन हो या और कोई अलग टाइप का नेचर हो. इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट मींस रिटर्न फॉर द यूज बाय वन पर्सन ऑफ अ सम बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन वेयर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज इन काइंड, टैक्स विल बी डिडक्टेड एट सोर्स. इंटरेस्ट में क्या क्या है? इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, डेट हो गया, क्लेम हो गई, सर्विस फीस, अदर चार्जेस इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड, ये सब चीजें आ गई. अब एक इसमें एक और रिबेट दी गई है सीनियर सिटीजन्स को कि सीनियर सिटीजन्स की अगर 50,000 से ऊपर का अगर इंटरेस्ट 50,000 से ऊपर का बन रहा है तो ही काटेंगे, 50,000 तक उनको रिलैक्सेशन दी गई है 194A के अंदर. ये आप सबको पता है टैक्स कब डिडक्ट करना है. अब ये टैक्स कब जमा कराना है उसके सर्टेन ड्यू डेट्स है. 30 जून की हर सब्सिक्वेंट फॉलोइंग मंथ ऑफ द क्वार्टर, तो 7 जुलाई, 7 अक्टूबर, 7 जनवरी, और मार्च के केस में एक स्पेशल रिलैक्सेशन दी है, 30 अप्रैल तक जमा करा सकते हो आप. अब अपन नए सेक्शन की तरफ आते हैं, सेक्शन 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर्स. Any person responsible for paying any sum to any resident for carrying out any work in pursuance of a contract between the contractor and a specified person will be liable to deduct tax at source at the specified rates. The term contract will include, contract में क्या क्या include होगा? सब contract also. और specified persons में कौन कौन आ गए? Central government, state government, local authority, any corporation established by or under the central act, company, cooperative society, any authority constituted in India by or under any law, or any society registered under the Societies Act, any trust, any university established or under the Central Act, or any government of foreign state or foreign enterprises, any firm, or firm will include LLP also. कौन कौन से पेमेंट्स हैं जो 194C में कवर्ड होंगे? Section 194C is applicable in relation to a payments for any work, including supply of labor. Manpower supply भी इसमें कवर्ड होगा. Section 194C relating to tax deduction from payment to contractors are applicable only where contract is either a work contract or a contract for supply of labor for work contract. Who is responsible for deduct TDS? The payer, जो पे कर रहा है.
When tax is deducted, same case, accrue or payment whichever is earlier. इसमें दो रेट्स है अपनी, 1% और 2%। 1% जो रेट है वो अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, और जो 2% रेट है वो एलएलपी फॉर्म कंपनीज और उनके लिए है। और उसमें वन टाइम अगर ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो 30,000 के ऊपर टीडीएस काटना है, और पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर 1 लाख से ऊपर हो रहा है तो टीडीएस काटना है। दैट इज ओके। केडिया जी सुन पा रहे? सर यस सर, गुड गुड। अब है अपना 194D इंश्योरेंस कमीशन। इंश्योरेंस कमीशन क्या है? इंश्योरेंस कमीशन कंटेम्पलेटेड अंडर सेक्शन 194D इज अ रेम्यूनरेशन और रिवार्ड फॉर सॉलिसिटिंग और प्रोक्योरिंग इंश्योरेंस बिजनेस, और रेम्यूनरेशन और रिवॉर्ड पेबल फॉर कंटिन्यूअस रिन्यूअल और रिवाइवल ऑफ द पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस। पेइज कौन कौन कवर्ड है इसमें? पेइज हु आर कवर्ड एनी रेजिडेंट पर्सन हु रिसीव्स इंश्योरेंस कमीशन और क्वांटम ऑफ सच पेमेंट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। काटना किसको है? द पेयर जो काट रहा है, और क्या रेट से काटेगा? 5% काटेगा 15,000 से ऊपर। ठीक है, ये सब आपको ध्यान ही ये सब। अब अपना नया सेक्शन है 194I। मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन ही कवर कर रहा हूं जो आप जनरल प्रैक्टिस में अपन फॉलो करते हैं, तो और टाइम की भी थोड़ी कमी है, इस हिसाब से मैं चल रहा हूं। सेक्शन 194I, what payment is covered by section 194I? A, any sum paid by way of consideration for transfer of any immovable property other than agricultural land is under section 194. Under section 194A, provided the consideration for transfer of immovable property of value is more than 50 lakhs. अब ट्रांसफर ऑफ immovable property में क्या होगा? कौन क्या चीज कवर होगी? लैंड अदर देन एग्रीकल्चर लैंड और एनी बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग। पेयर कौन होगा? जो परचेज कर रहा होगा, जो पे कर रहा है ट्रांसफर को, वो पेयर होगा। पे कौन होगा? ट्रांसफर होगा। टाइम ऑफ डिडक्शन, द टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच सम पेड to the account of transferor or at the time of payment of such sum by issue of check or draft whichever is earlier। वही सेम है। रेट क्या है इसमें? 1% टीडीएस काटेगा ऑन और अबव 50 lakhs। और इसकी जो रिटर्न है वो स्पेसिफिक फॉर्म में 26QB फॉर्म में जाता है, और उसके लिए 16A फॉर्म है वो इशू किया जाता है उसके लिए, ताकि सामने वाले को क्रेडिट मिल सके। अपन नए सेक्शन की तरफ आते हैं, सेक्शन 194J, फीस और प्रोफेशनल सर्विसेज। सेक्शन 194J as amended by the Finance Act 2012 provided for deduction of tax at source on any sum payable to a resident by way of deduction of tax at source on any sum payable to a resident by way of fees for professional services, fees for technical services, or any sum payable as a royalty or any sum referred to in section 28 of the Act. Payments covered by section 194J. Tax is required to be deducted at source on any payment by way of fees for professional services, any payment by way of professional services, technical services, royalty, payment for non-compete fees, any remuneration of fees or commission by whatever name called other than those under section 192, that is director remuneration। and TDS इसमें रेट क्या है? 10% TDS on or above 30,000। टैक्स कब काटना है ये अभी सेम है, ऐसा कुछ इसमें नया है नहीं। अब मैं नए सेक्शन की तरफ आ रहा हूं, सेक्शन 194I, टीडीएस एट सोर्स फ्रॉम रेंट पेमेंट। सेक्शन 194I as the Finance Act 1994 with effect from provides for deduction of tax at source from the payment in the nature of income by way of rent। What payments are covered in section 194I? Payment of income by way of rent by any person। Payment of an income by way of rent means any payment under any lease, sublease, tenancy or any other agreement or arrangement for the use of following। क्या क्या चीजों में यूज में उसका लैंड का क्या क्या चीज? लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गई, लैंड अपार्टमेंट टू बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गई, मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर फिटिंग्स हो गए, ये सब चीजें हो गई। एडवांस रेंट भी सब्जेक्ट टू टीडीएस होगा, बट उसका टीडीएस डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं
टीडीएस की लिमिट क्या है इसमें? TDS deduction on persons other than individual achieve of making rental payments to a resident Indians above a specified limit rupees 2,40,000 in a year. The rent under this section broadly includes house rent, machine rent, building rent, office rent or furniture rent, etc. Rate of TDS क्या है? रेंट मशीन प्लांट और इक्विपमेंट पे होगा तो 2% काटना है। रेंट ऑफ लैंड और बिल्डिंग और फैक्ट्री या फर्नीचर फिक्चर्स जो भी होगा उस पर 10% काटने कंपनी के लिए और 5% फॉर इंडिविजुअल्स। राइट, अब एक नया सेक्शन आया है अपने पास, सेक्शन 194N, टीडीएस लेवी ऑन कैश विड्रॉल्स। ये गवर्नमेंट लाया है बेसिकली कैश ट्रांजेक्शंस को कम करने के लिए और डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए ये सेक्शन लाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या है कुछ मैं आपको बता देता हूं। इंडिविजुअल्स जो कैश विड्रॉ कर रहा है 20 लाख से ऊपर और जिसने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न नहीं फाइल करी है, उसको बैंकिंग कंपनी और जहां भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो ड्रॉ कर रहा है वो 2% उसका टीडीएस काटेगा। राइट, और एक और स्लैब बनाई है कि 1 करोड़ से ऊपर अगर वो टीडीएस वो कैश विड्रॉ करता है और सेम कि 3 साल पिछले 3 सालों में अगर उसने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो उसको 5% टीडीएस काटना है बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। हाउ पर अगर कोई इंडिविजुअल पिछले 3 सालों में रिटर्न फाइल कर रहा है और कैश विड्रॉ 1 करोड़ से ऊपर है तो उसको 2% काटेगा वो। और अदर्स के केस में बैंकिंग कंपनी फर्म और उनके केस में 2% टीडीएस है अगर 1 करोड़ से ऊपर कैश विड्रॉ कर रहा है। इंडिविजुअल्स की लिमिट मैंने आपको बता दी, इंडिविजुअल्स में 2 लिमिट कर दी गवर्नमेंट ने कि जो 3 साल से लास्ट ईयर फाइल नहीं कर रहा है रिटर्न तो उनके पर अलग लिमिट बना दी गवर्नमेंट ने, और जो फाइल कर रहा है उसकी लिमिट चेंज कर दी, 1 करोड़ कर दी, उसको उसके ऊपर 2% से टीडीएस काटना है। और इंडिविजुअल को उसके अलावा बाकी सब पे 1 करोड़ से ऊपर 2% टीडीएस काटना है। वो टीडीएस अकाउंट वाइज सारे अकाउंट्स को टोटल करके देखा जाएगा, वेदर इट इज अ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, सब पे एप्लीकेबल होगा ये। इसमें एक चीज और है कि जो भी टीडीएस काटेगा बैंकिंग कंपनी और उसको फॉर्म 16 इशू करेगा तो वो जहां जैसे अपन नॉर्मल सर्कमस्टेंस में देखते हैं कि फॉर्म 16 इशू करने के बाद अपन उसको कंप्यूटेशन में दिखाते हैं और इसको इनकम ट्रीट करते हैं जिसके ऊपर टीडीएस काटा है, वो केस यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर जो टीडीएस काटा है वो ओनली कैश विड्रॉल्स पे काटा है एंड इट इज नॉट एन इनकम, तो वो इनकम की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा, उसको कंपटीशन में इनकम की तरह नहीं डाला जाएगा। वो सिर्फ एक उसको क्रेडिट दिलाने के लिए फॉर्म 16 इशू करेंगे और उसको ओनली क्रेडिट मिलेगी, इनकम में उसको ऐड नहीं करना है अपने को। राइट, अब मैं कुछ ये कि समरी है फटाफट जो अपने सेक्शंस आए हैं मैं उनको एक बार समरी वाइज एक बार आपको बता देता हूँ। और अभी लेटेस्ट एक कोरोना ड्यू टू कोविड एक गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी थी कि जो रेट्स जो भी एग्जिस्टिंग रेट्स है टीडीएस की उनको 25% कम कर दिया है गवर्नमेंट ने, जो भी आपके रेस्पेक्टिव रेट्स है पर्टिकुलर सेक्शन वाइज उनको कम कर दिया गया है। जैसे 192 का तो आपको पता है कि वो जैसे उसकी स्लैब है उसके हिसाब से काटना है। 194A में जैसे 10% थी तो उसको 7.5% कर दिया गया है। 194C में कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जैसे पहले 1% 2% थी उसको 0.75 1.5 कर दिया गया है। एच के अंदर जैसे 15,000 से ऊपर पेमेंट करते हैं तो 5 का 3.75 कर दिया गया है। रेंट का वही पर्टिकुलर सबका 25% कम कर दिया गया है। ये मेरे कुछ समरी है, ये पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगा बाद में अगर आपको अच्छा लगे। अब अपन कुछ और बातों पे आते हैं, जैसे फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स की बात करते हैं अपन। तो रिटर्न फाइलिंग के लिए अपने हर क्वार्टर की 31st नेक्स्ट जो मंथ है उसकी 30 तो 31st डेट को जमा कराना होता है अपने को स्टेटमेंट्स को। और मार्च के केस में क्वार्टर एंडिंग मार्च के केस में अपने को 1 महीना एक्स्ट्रा मिला है, 31st में है उसकी डेट। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने को बेस ध्यान में रखनी चाहिए अपन जब टीडीएस रिटर्न फाइल करते हैं और टीडीएस काटते हैं तो उस टाइम ये कुछ जरूरी पॉइंट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। If payee has not provided his PAN number, the TDS rate will be 20%. अगर payee PAN furnish नहीं करता है तो। In case of TDS on transportation charges, if contractor owns 10 or less than 10 goods तो carriages at any time during the previous financial year, he has to give a declaration to the effect. उसको declaration देना पड़ेगा क्या? The deductor besides उसको declaration ये देना पड़ेगा कि मेरे पास ये 10 या 10 से कम है मेरे पास carriage,
deductor besides furnishes PAN to deductor, deductor has to make payments to the transporter without deducting TDS. अब जो deductor है, जो TDS deduct करने वाला है, वो TDS नहीं काटेगा अगर ट्रांसपोर्टर ने अपना पैन नंबर दे दिया तो, बट वो पैन नंबर उसको 26 फॉर्म 26Q में डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा। ये उसकी कंडीशन है। ये आपको पता है कि अगर टीडीएस रिटर्न नहीं जमा कराते हैं तो उसकी पेनल्टी है 200 पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ द पेनल्टी ऑफ दैट क्वार्टर। अब अगर अपन टीडीएस लेट जमा कराते हैं और या लेट काटते हैं तो उसके ऊपर क्या क्या कितना इंटरेस्ट डिपार्टमेंट चार्ज करेगा अपने से? लेट डिडक्शन पे 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। सॉरी, पार्ट देयर ऑफ का मतलब ये है कि लाइक आपने 31 मार्च को इंटरेस्ट टीडीएस काटा और आपने जमा लेट सपोज बाद में किया तो वो मार्च का भी काउंट करेगा और जब तक जमा नहीं करेगा तब तक काउंट करेगा ये। ऐसे ही लेट डिपोजिशन पे भी आप 1.5% पर मंथ है। बट अभी गवर्नमेंट ने एक रिलैक्सेशन दी थी ड्यू टू कोविड-19 कि अगर 20 मार्च से लेकर अगर 29 जून तक अगर किसी का पेमेंट ड्यू हुआ है तो उसको जो रेट है ये अगर अपन एनुअली देखें तो 18% बनती है, पर गवर्नमेंट ने इसको आधा कर दिया है, 9% पे ला दिया है गवर्नमेंट ने इसको। अब जो जिसकी टैक्स ऑडिट होती है उसको टीडीएस काटना होता है, उसको एक गवर्नमेंट ने एक उसके लिए ये डाला है कि अगर वो टीडीएस नहीं काटता है तो उसका एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। और अगर उसने रिटर्न फाइलिंग से पहले रिटर्न फाइल नहीं, ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल नहीं करी है तो दोनों में से अगर एक भी चीज हुई तो उसको नहीं मिलेगा खर्चे का अलाउंस। अब कोविड इंपैक्ट में कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने डाली है, कुछ रिलैक्सेशन दी है। ये मैंने एक तो आपको बता दिया कि अगर 20 मार्च से लेकर 29-30 जून तक अगर कोई ड्यू होता है तो उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी रह जाएगी। और एक और है कि टीडीएस रिटर्न जो क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च की टीडीएस रिटर्न है उसकी डेट भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, उसको करके 31 जुलाई कर दी है गवर्नमेंट ने विदाउट एनी लेट फीस। ये मेरा छोटा सा ब्रीफ आज था और मेरी तरफ से मैं सब कुछ ओवर कर चुका हूं। आप अगर कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए। अभिषेक जी केड़े रोहित म्यूट हो गया, तू म्यूट हो गए सर आप। हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे, पूरी मीटिंग ही म्यूट में चल रही थी, ऐसा लग रहा है। नहीं सर बिल्कुल सही चल रही है आपकी, बहुत अच्छी रहा। हाँ केडिया जी, कुछ डाउट्स हो किसी के तो आप बताइए मुझे। केडिया जी शायद गए हो। केडिया जी कहाँ गए? गए। मोनू जी आप लीजिए, कोई डाउट हो किसी के कोई हो तो आप बताइए। हाँ बताइए पार्टिसिपेंट, किसी का कुछ डाउट हो तो अपन अभी ले लेते हैं, अदरवाइज आप इनकी मेल आईडी में आपको शेयर कर दूंगा, आप मेल कर दीजिएगा। हेलो हाँ बताइए। बताइए ऋषि जी बताइए। हाँ बोलिए आगे अरे बोलिए ऋषि जी। आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही। आप या तो टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए या इस पे चैट पे मैसेज कर दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है, बोलिए। अभी मेरा एक पॉइंट आया था ऑडिट के टाइम पर। हाँ जैसे मतलब हम रिको को कोई पेमेंट कर रहे थे, हाँ रिको को पेमेंट कर रहे थे अब 240 हाँ एंड का पेमेंट, तो उसका टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा? नहीं, 240 के ऊपर अगर रेंट का पेमेंट है तो टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। लेकिन रिको को पेमेंट कर रहे थे वो। नहीं, हाँ वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट को अगर अपन पेमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटेंगे। खुद अपन गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट का टीडीएस है तो गवर्नमेंट को नहीं काटेंगे टीडीएस अपन। ओके गॉट इट। हाँ जी, और कोई एनी अदर क्वेरी प्लीज गाइस?
चलो फिर अपन इसी को। तो थैंक यू जयपुर चार्टर्ड यूथ क्लब, बहुत अच्छा रहा आज का हमारा ये पहला वेबिनार था, और सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू उन्होंने इतना धन्यवाद सर आपके लेक्चर के लिए। थैंक यू थैंक और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आप कनेक्टेड रहिए, हमसे जुड़े रहिए, आगे और भी वेबिनार्स आएगी। आप जो भी आपको अगर किसी टॉपिक पे ऐसा लगता है कि इस पे वेबिनार होनी चाहिए, तो आप हमें सजेस्ट भी करिए, आप हमें इंप्रूवमेंट्स के लिए भी बताइए कि हम क्या चीज अच्छी और कर सकते हैं, या क्या टॉपिक हम नया और ला सकते हैं, तो हम जरूर लाएंगे। और हम ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स और करंट इश्यूज है वो उसके रिगार्डिंग अपन वेबिनार करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी पार्टिसिपेंट्स का और मॉडरेटर साहब केडिया जी का, और बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेरी हो तो आप मेरी मेल आईडी है, मेरी मेल आईडी नोट कर सकते हैं आप, rohitcajpr@gmail.com। आप उसमें मेरी मेल आईडी पे क्वेरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और मैं अब केडिया जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर किसी क्वेरी हो तो ले, अदरवाइज हम फिर विदा कहें। एनीवन हैव एनी क्वेरी? अगर किसी को क्वेरी है तो वो अभी पूछ सकता है, अपने पास 5 मिनट का टाइम है। और अगर अभी क्वेरी नहीं है, बाद में हो तो आप रोहित जी को मेल आईडी पे आप क्वेरी भेज सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और इस स्लाइड हम आपके साथ शेयर कर देंगे, आप अपनी मेल आईडी मैसेज कर देना। थैंक यू। तो अपन इसी के साथ करते हैं सर, ओवर करते हैं सर। बिल्कुल सर। एक सेकंड, वन मोर थिंग आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ कि प्लीज हमें एक बार ये जरूर बताएं कि हमारे सेशन में कहाँ क्या कमी थी और अपन कहाँ इंप्रूवमेंट कर सकते थे, और क्या चीज है एक्स्ट्रा जो अपन ऐड कर सकते हैं, या अपन किस तरीके से और अच्छा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। और कोई अपने में से, अपने जो अभी लोग हैं इनमें से और कोई आना चाहे कि यार मैं इस टॉपिक पे बोलना चाहता हूँ या मैं स्पीकर बनना चाहता हूँ, तो आप जरूर आगे आए। हम उसके लिए प्लेटफॉर्म अपना सबके लिए चालू है, ऑन है। आप कभी भी आइए, आप हमें बोलिए, आप चाहते हैं कि हम इस टॉपिक पे बोलना चाहते हैं या करना चाहते हैं, या हम भी कुछ करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, हमारे अंदर की जो हेजिटेशन है उसको बाहर निकालना चाहते हैं, आप बेशक आप आइए, हमसे बोलिए, आप टॉपिक लेके आइए, हम आपको प्रिपेयर अप करा देंगे, हम आपको हेल्प कर देंगे। आप बिल्कुल आइए। अभी इसको हम आगे से हम एक बड़े प्लेटफॉर्म पे भी लॉन्च करने का सोच रहे हैं। इसको हम यूट्यूब पे भी इसको अपन लिंक करेंगे, ताकि लोग जो किसी को क्वेरी हो या बाद में किसी को देखना हो तो आप यूट्यूब पर भी जाके देख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी को कोई क्वेरी आती है तो कई लोग सर्च करते हैं तो वो यूट्यूब पे भी ले जाता है, तो हमारा वीडियो वहां भी लिंक होगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। अगर आपको किसी को कुछ हो, आप डाउट या किसी को क्लास लेनी हो या किसी को स्पीकर करना हो, तो आप कनेक्ट करिए। और थैंक यू सो मच। बस यही कहना चाहता हूँ। केडिया जी, क्या आप थैंक यू सर, अलविदा कहें? थैंक यू सर, थैंक यू रोहित शर्मा जी फॉर योर वैल्यूएबल सपोर्ट, वैल्यूएबल नॉलेज। ऐसे ही बस हम चाहते हैं कि आप हमेशा आपकी नॉलेज हमारे साथ शेयर करते रहें थोड़े दिनों में आके। और थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर करते हैं, इसी के साथ अपन ओवर करते हैं। ओके, ठीक है जी, धन्यवाद।